Upanishad or Puran. Nilanjan sir asked me that who are behind it. So I'll give a brief introduction. There is there are two organizations behind this platform. One is a Helpling Charitable Foundation that was started by me as a founder chair to help the needy student in getting their education. So every year we distribute around 2,500 to 3,000 school kits to Jila Parishad school or other municipal corporation schools, uh, which contains school bag, uniform, shoes, socks, etc., which cost around 1,000 rupees. I request the patrons and mentors around the world and get donation of around 20-25 lakhs, and we distribute it to the children. And many of you probably have witnessed that we organize one program in Rani Koti for distribution, and one program we do for our mentors and patrons, a cultural evening, which we are organizing this year on 25th of January. You all are invited in that. It is at 7 o'clock in Vanamati. The theme this year is the Golden Era Bollywood songs. There are around 25, means we have selected 25 Bollywood legendaries who are not among us, like Raj Kapoor or Lata Mangeshkar or like that. So we have selected one song from each, and uh, Madhur Swara is the organization orchestra. They will be playing for us. Second organization is Chitnavi Center itself. They have a platform called Parampara, in which they want to unfold our culture, heritage, Sanskriti, etc. And they give us this all free of cost. They advertise this program in their audience also. So these are the two organizations organize this every month. This is 24th or 25th, 25th program. Every month, one program we organize. Today, with us, Kumar Kalesar, popularly known as, and he'll be taking the Tulsi Ramayana, particularly Ram and Lakshman. I will not call it Samvad, but what Shiksha he has probably given to the Lakshmana. I'll just read his brief, though Kumar Kalesar is very well known in the Nagpur circle and other places also. So he born January 7, 1953 in Jabalpur, Madhya Pradesh. He's BCom and diploma in business management. His actual name is Prafulla, which I was also not knowing. Kumar sir, we all know Kumar Kale sir. Is the member in governing board of Central Hindu Military Education Society Nasik and trustee in Vidarbha Economic Development Council and Nag Bhushan Award Foundation. He is also the honorary executive chairman of Indian Cancer Society and president of Bharati Krishna Vidya Vihar. He has keen interest in wildlife, nature and music, and at present is studying philosophy. He is the chairman in Jaika Group of Companies and managing director of Jaika Motors Private Limited. He has sent very brief, but he is a very honorable and giant personality, which we all know. About subject, though my name is written in the flyer as a moderator, but honestly, I do not know much about the subject. As much means I know as much, mostly knows that Ramayana hai, Ram hai, Krishna hai, Sita hai, Lakshman hai. कृष्ण नहीं सॉरी राम सीता लक्ष्मण वगैरह है तो मेरे को भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है कुमार काले सर हमें परिचित कराएंगे और से अराउंड 45 to
60 minutes he will talk about it, and then we can have our questions and answers there. Thank you very much, sir. धन्यवाद हेमंत जी, आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इसके वजह से मेरा रिवीजन हो गया। क्योंकि कहीं भी माइक लेके अगर बोलना है तो रिवीजन की अति आवश्यकता होती है। तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे को इसी निमित्त के वजह से थोड़ा बहुत तुलसी रामायण पढ़ने का मौका मिला और मैंने रिवाइज कर लिया। जब मुझे रुपेश जी ने भेजा था सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो पता नहीं भगवान मेरे मन में भगवान राम का ही नाम क्यों आया। वो यूं हो सकता है कि भगवान राम के गुणों की अगर हम गिनती करने जाएं तो हम थक नहीं सकते। तो इसलिए आज का ये मेरा छोटा सा प्रस्तुतिकरण करने के पहले मैं भगवान श्री गणेश को नमन करता हूं और शुरू करता हूं। राम रक्षा स्तोत्र में आखिरी का दोहा है, वो मेरी समझ से सबसे इम्पोर्टेंट दोहा है और श्लोक कह सकते हैं। वो तुलसी रामायण पढ़ते पढ़ते दोहा और चौपाई यही दिमाग में घुसा हुआ है। तो दोहा जो श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम जो नाम है वो मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाला नाम है, और राम नाम सुनते ही मैं ऐसा अपने आप को गदगद महसूस करता हूं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। राम का नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। एक बार आपने राम नाम जप कर लिया तो उसका रिजल्ट जो है, फल जो है, आपको 1000 नाम के बराबर मिलेगा। तो ये मंत्र जो है राम रक्षा में स्तोत्र में आखिर में आता है। अगर हम संस्कृत शब्द है राम, र, अ और म, ये तीनों का संगम होकर के राम होता है। अब ये शब्द जो राम है इसका मतलब क्या है, अगर हम ये जानना चाहें तो राम का मतलब है, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों मिक्स करूंगा क्योंकि हमेशा इतनी हिंदी भी अच्छी नहीं है और अंग्रेजी तो उससे भी कमजोर है। तो खैर, राम शब्द का अर्थ हम जानना चाहें तो पहला अर्थ होगा अल्टीमेट रियलिटी, इसके बियॉन्ड दूसरा कुछ नहीं। राम का दूसरा अर्थ है आत्मा, जो आप हम सबके अंदर बसी हुई है। तीसरा अर्थ जो सबसे उजागर होता है, चाहे तुलसी रामायण पढ़िए चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वो है धर्म। राम शब्द का अर्थ धर्म के साथ आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है कॉस्मिक ऑर्डर। जो भी हमारा ब्रह्मांड है उसमें जो भी ऑर्डर है कि भाई पृथ्वी क्यों घूमती है अपने एक्सिस में, पृथ्वी क्यों 365 दिन लगा के सूर्य की परिक्रमा करती है, इसी प्रकार से हर प्लेनेट, हर तारा एक स्थिति लय में पता नहीं कितने वर्षों से लगातार घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो ये एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर को आज तक कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया, नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये भगवान का ऑर्डर है। तो कॉस्मिक ऑर्डर का अर्थ भी राम होता है। इसके साथ साथ इनर पीस और डिवोशन, ये सारे अर्थ जो है राम शब्द के अर्थ हैं। तो अब हम मुड़ते हैं तुलसी रामायण के ऊपर। तुलसी रामायण के ऊपर जाने से पहले करीब करीब 300 टाइप्स ऑफ रामायण हैव बीन रिटन टिल नाउ। सबसे एंशिएंट जो है वो वाल्मीकि रामायण है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तत्पश्चात कई रामायण आए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बंगाली, ये सारी भाषाओं में रामायण को लिखा गया है। सबसे प्रचलित जो है एंशिएंट है, जैसे कि कहा, वाल्मीकि रामायण, और सबसे लेटेस्ट जो है वो तुलसी रामायण। तुलसी रामायण 1631 में तुलसीदास जी ने लिखा।
तुलसीदास जी वाराणसी में पैदा हुए और उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास पैदा हुए तो पैदा होते के साथ बच्चा रोता है, लेकिन तुलसीदास जी राम राम जप करते हुए पैदा हुए, इसलिए उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का नाम राम बोला रख दिया। तो राम बोला दुबे के नाम से वे प्रचलित हुए वाराणसी में। और कब और कैसे उनका नाम तुलसीदास पड़ा, ये कहीं पढ़ने में नहीं आता, या मेरे पढ़ने में तो नहीं आया। आपके किसी का आया हो तो जरूर बताइएगा। तो तुलसीदास जी ने 1631 में ये रामचरितमानस की रचना की। अब ये 1631 में शुरुआत करी या खत्म करी, इसके बारे में भी कहीं उल्लेख मुझे मेरे पढ़ने में नहीं आया। लेकिन तुलसीदास जी खुद कहते हैं रामायण में, तुलसी रामायण में, सादर सियहि नाई अब माथा बरनऊ बिसद राम गुण गाथा संवत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। तो ये कहते हैं कि सादर सियहि नाई अब माथा, मैं भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अब भगवान राम के गुणों का वर्णन करता हूं। ये संवत 1631 में उन्होंने खुद ने लिखा है कि अब मैं भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके अब भगवान के गुणों का गान करता हूं। आगे के श्लोक में लिखते हैं, नवमी मास बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल कहां चली आवही। तो चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार की थी 1631 में। इस दिन अयोध्या धाम अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, अवधपुरी में यह चरित्र को प्रकाशित किया, ऐसा तुलसीदास जी ने स्वयं अपने तुलसी रामायण में कहा है। तुलसी रामायण में 7 अलग अलग कांड दिए हैं। कांड मतलब सेक्शंस दिए गए हैं। जिसमें पहला जो कांड है बाल कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आखिरी का उत्तर कांड। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आरण्य कांड में से कुछ दोहे हम लेंगे, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भगवान राम ये विष्णु के 7वें अवतार हुए। विष्णु के जो 10 अवतार हैं, जिसमें 10वां जो कल्कि अवतार अभी होना बाकी है, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार होगा इस पृथ्वी पर। तो पहला जो अवतार था वो मत्स्य अवतार यानी फिश, कुर्मा यानी टॉर्टॉइज, वराह यानी बोर, नरसिंह अवतार ये फेमस अवतार है भगवान का, वामन अवतार, उसके बाद परशुराम, ये भी लोग जानते हैं परशुराम अवतार को। 7वां अवतार भगवान राम का था, 8वां कृष्ण, 9वां भगवान बुद्ध और 10वां कल्कि। ये इतने भगवान राम के विष्णु के अवतार इतने हुए हैं और कल्कि अभी होने वाला है। अगर हम भगवान राम के गुणों के बारे में चर्चा करें तो उनके 16 गुण हैं। जब भी शादी की बात होती है, जब हम लड़का और लड़की की पत्रिका मिलाते हैं तो ये कहते हैं कि 16 गुण मिलने चाहिए, तब आइडियल मैरिज सिद्ध होगा। तो ये 16 गुण क्या है जो केवल भगवान राम में है? मैं अभी लिस्ट पढ़ता हूं 16 गुणों की, आप अपने मन में टिक करते जाइए कि आप कौन से गुणों, मतलब गुण को आप टिक कर सकते हैं, आपके आप में कौन से गुण हैं इन 16 में से। तो आप भगवान राम के कितने करीब है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये छोटा सा टेस्ट ले लीजिए। तो पहला गुण है उनका कि धर्म इवन एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल हार्डशिप, किसी भी कीमत में धर्म छोड़ना नहीं है। सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, किंगडम एंड सोसाइटी, कंपैशन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्टेटस। ये हमने देख लिया है, जैसे कि केवट प्रसंग आता है। तो केवट एक लो कास्ट के नाविक थे
लेकिन केवट और भगवान राम का प्रेम संबंध ऐसा रहा कि युगों युगों तक रहा और आखिर में केवट को मुक्ति मिल गई इस संसार से। उसके बाद आइडियल सन, अपने पिता के वचन को सिद्ध करने के लिए 14 वर्ष का वनवास भी उन्होंने ग्रहण किया। लॉयल टू हिज वाइफ, एक प्रतिव्रता, वो भगवान राम ने हमें सिखाया। हमें पता है जब राजसूय यज्ञ किया भगवान राम ने तो सोने की मूर्ति बनाई सीता की और तभी जाकर के राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद ब्रेवरी और स्ट्रेंथ, नॉट मोटिवेटेड बाय प्राइड बट बाय सेंस ऑफ ड्यूटी एंड टू प्रोटेक्ट, ये भगवान राम की स्थिति। विजडम एंड डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट यानी विवेक, हमेशा विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही और गलत, नित्य अनित्य, इसमें फर्क किया। ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, इसमें एंगर नाम की जरा भी चीज नहीं थी। ट्रू टू हिज वाउज, जो भी उन्होंने वाउज लिए थे उसमें हमेशा पालन किया। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट, सेंस ऑफ जस्टिस, रोल मॉडल फॉर ऑल, पेशेंस एंड परसिवरेंस, एंड अबव ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिज गुरु। उनके गुरु हुए विश्वामित्र, उनके गुरु हुए वशिष्ठ। ये दोनों जो गुरु थे भगवान राम के, उनके प्रति इनका अगाध प्रेम था। जब शिव धनुष तोड़ने की बात आई सीता स्वयंवर के प्रसंग में, तो भगवान अपनी जगह से नहीं उठे जब तक के विश्वामित्र ने उन्हें आदेश नहीं दिया कि अब उठो राम, अब जाओ और ये शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाओ और इसको तोड़ो। जब तक विश्वामित्र ने नहीं कहा भगवान राम नहीं उठे। गुरु की आज्ञा का पालन, ये उनकी सबसे बड़ा गुण था। अब हम भगवान राम और लक्ष्मण के जो वार्तालाप हुई, भगवान राम को लक्ष्मण जी ने जो सवाल पूछे उसकी ओर हम बढ़ते हैं। राम के बारे में थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम पड़ा वो मैंने बताया। तो ये आरण्य कांड का प्रसंग है। आरण्य कांड के प्रसंग में एक समय आता है जब भगवान राम, सीता तथा लक्ष्मण पंचवटी आश्रम में विश्राम कर रहे थे। पंचवटी मतलब आज का प्रेजेंट डे नासिक, उसको हम वहाँ पंचवटी एक एरिया भी है जिसको पंचवटी कहा जाता है, प्रेजेंट डे नासिक में वो जगह है। तो जो भगवान राम वहाँ बैठे हुए हैं और वैसी मुद्रा में बैठे हैं, बड़े ही सुखद मुद्रा में भगवान राम बैठे। आपने भगवान बुद्ध की मूर्ति देखी होगी। भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है, अगर आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध की आंखें जो है 3/4 से ज्यादा बंद होती हैं और 1/4 से कम खुली होती है। अब आप परसेंटेज आप लगा लीजिए कितनी खुली है और कितनी बंद है, लेकिन आप मूर्ति देखें। उसका मतलब क्या है? ऐसी आंखें बंद करके क्यों भगवान राम बैठे थे या भगवान बुद्ध बैठे थे? उसका अर्थ ये निकलता है कि मैं अपने सस्वरूप में इमर्स्ड हूं, मैं अपने सेल्फ में इमर्स्ड हूं, और जो छोटा सा जो फट रखी है, मतलब गैप रखी है जो संसार को देखने के लिए, संसार और मुझ में मैं फर्क करता हूं। इसलिए वो जो आंखें जो है वो आधी से ज्यादा बंद और थोड़ी सी खुली हुई रखती हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने स्वस्वरूप में स्थापित है, एस्टैब्लिश्ड है। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम बैठे हुए थे पंचवटी आश्रम में। लक्ष्मण जी आते हैं और भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो दोहा आता है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सराचर साई, मैं पूछहु निज प्रभु की नाही। ये जो स्टाइल ऑफ रेसिटेशन है, ये तुलसी रामायण पढ़ने का एक तरीका है। तो इसी प्रकार से ये एक छंद है जिसमें कि हम कहते हैं, और जब ये चौपाई का छंद है और जब दोहा आता है तो ट्यून थोड़ी चेंज हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा जब दोहा आएगा तब मैं वो ट्यून में बोलने की कोशिश करूंगा। देखें जमता है कि नहीं जमता, पता नहीं, मुझे प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अब करना पड़ेगा। एक बार प्रभु सुख आसीना,
प्रभु बैठे थे एक बार कुटिया के सामने वट वृक्ष के नीचे, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। छलहीना मीन्स सरल स्वभाव से, सरल स्वभाव से लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे देवता मनुष्य, हे देवता मनुष्य और चराचर के स्वामी, मतलब सारे जगत, जो दृश्य जगत है और अदृश्य जगत है, उसके स्वामी आप मेरे प्रभु की तरह है। आप मुझे मेरे सवालों का मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने टोटल 3 सवाल पूछे, और वो 3 सवालों का जवाब भगवान राम ने किस प्रकार दिया वो हम आगे देखेंगे। पहला उन्होंने इंट्रोडक्शन किया कि मुझे सवाल पूछना है ये, और दूसरा उन्होंने कहा मोहि समझाऊ कहु सोई देवा, तब सब तज करऊं चरण रज सेवा, कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु सो भगति करु जेहि दाया। भगवान ने कहा कि हे प्रभु, प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन भेद गूढ़ सत्य, मुझे बताइए किस बारे का गूढ़ सत्य, ईश्वर और जीव का डिफरेंस क्या है, ये मुझे बताइए। आई वॉन्ट टू क्लियर माई डाउट्स सो दैट माई भक्ति टूवर्ड्स यू इज इमेंसली इंक्रीज्ड, और मैं अपने सारे जो मन में शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, सारे दूर कर सकूं और आपका आशीर्वाद मुझे मिले। कहु सो भगति करु जेहि दाया, मतलब दाया मीन्स दया, आपकी दया मुझ पे बनी रहे और मेरी भक्ति आप में दृढ़ होती रहे। इसके ये मेरे को बताइए, और क्या चाहिए मुझे, ज्ञान और वैराग्य और माया, ये 3 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, ज्ञान वैराग्य और माया, ये 3 शब्द मुझे बताइए। तीसरा प्रश्न जो लक्ष्मण जी पूछते हैं वो अब एक दोहे के रूप में आता है, तो थोड़ा ट्यून चेंज होगा, मैं आप कोशिश करता हूं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। तो इसमें भगवान कहते, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझे हे प्रभु जीव का भेद समझाकर बताइए, इसके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह भ्रम नष्ट हो। तो शोक भ्रम और मोह, ये तीनों खत्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भगवान राम, मतलब इन्होंने क्या क्या पूछा, ज्ञान और वैराग्य, शोक मोह इसके बारे में पूछा, माया के बारे में पूछा, और सब जीव प्राणी जितने हैं संसार में, इन सब के प्रति मेरा समत्व भाव कैसे हो, ये भी भगवान को लक्ष्मण जी ने पूछा। अब हम आते हैं भगवान के उत्तर के बारे में, भगवान ने कैसा उत्तर दिया इसका। थोरे ही मोह सब कहूं बुझाई, सुनत तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर में माया, जे ही बस कीन्हे जीव निकाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आता है मोर और तोर, मी एंड माइन, और मी और माइन, यू एंड योर्स। ये जो 2 शब्द जो आते हैं, इसमें ही सारा गूढ़ सत्य ये संसार का छुपा हुआ है। तो अब देखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कितने दिन लग गए। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद मंत्रियों को शपथ ग्रहण करने में 1 महीना लग गया। आज तक के पालक मंत्री का अभी तक के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका कारण एक ही है, हर एक को अपने पसंद का पोस्ट चाहिए। यानी हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए, और वो किसके लिए, कि भाई पोजीशन ऑफ पावर किसको नहीं चाहिए। तो हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए। जो जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो हमारी संज्ञा इक्वल टू हो जाती है वांटिंग पर्सन।
हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए टू हैव अ बेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मे बी पोजिशन इन द सोसाइटी, मे बी पावर. सो मंत्री बनना मतलब पावर है, उनको पावर की भूख है. तो मुझे कुछ ना कुछ बनना है, इसलिए मी और माइन, मुझे और मेरा. मुझे मतलब मेरे को अपनी प्रगति करनी है, लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि अपनी प्रगति करना बुरा है. अगर वो धर्म संगत है तो जरूर प्रगति करनी चाहिए. अगर वो धर्म संगत नहीं है तो वो निषेध है, वो नहीं कर सकते हम, गलत होगा. भगवान आगे कहते हैं, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जेनहु भाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सोई, विद्या अपर विद्या तो. सो भगवान यहां कहते हैं कि इंद्रियों के विषय में जहां तक मन जाता है, उन सबको माया जाना चाहिए. अब हम देखिए, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं. 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या है? सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, इस प्रकार से सेंस ऑफ सीइंग, वॉकिंग, टेस्टिंग, एवरीथिंग. ये जो सारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हम देखते हैं, हमारी आंखों से हम देख रहे हैं. आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं और बाकी सबको देख रहे हैं. आपकी आंखें बाहर की ओर जाती हैं. क्या आपकी आंखें अपने आप को देख सकती हैं? नहीं. आप सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हैं. आपके कान बाहर से आई हुई आवाज को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आपकी कान भी बाहर की ओर गए. आप अगर कुछ सूंघते हैं, वो भी आप बाहर का स्मेल को ही सूंघते हैं. आपकी नाक अपने खुद का ही स्मेल नहीं ले सकती. उसी प्रकार से टेस्ट, आप जो भी टेस्ट करते हैं वो बाहर. तो इस कहने का मतलब है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो केवल बाहर की वस्तुओं के तरफ ही भागती हैं. हमारी इंद्रियों की कैपेसिटी नहीं है कि हम अंदर अपने स्वस्वरूप की ओर जाएं. ये हमारी इंद्रियों की कैपेसिटी नहीं है. उसी प्रकार से मन भी एक जड़ वस्तु है. मन क्या है? मन भी, हम बाहर की वस्तुओं के तरफ ही मन भागता है. लेकिन भगवान ने मन के साथ साथ हमें एक और चीज दी है, जिसका हम इस्तेमाल अगर ज्यादा करने लग जाए तो हमें ही खुद फायदा होगा. वो है अपनी बुद्धि, यानी इंटेलेक्ट. अगर हम अपना इंटेलेक्ट को माने तो हमारा जीवन और ज्यादा सफल, और ज्यादा सुखी, और सेटिस्फाइंग. और जो 16 गुण जो भगवान के हमने देखे, उन 16 गुणों में से कुछ तो टिक मार्क हम लगा ही सकेंगे. 16 के 16 तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ तो हम 1 आध 2 टिक मार्क लगा ही सकेंगे, ऐसा भगवान खुद कहते हैं. लेकिन एक इसमें बहुत गूढ़ प्रश्न आया है. वो ये आया है, भगवान ने कहा कि जो इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं, तो इंद्रियों को हमको कंट्रोल करना चाहिए. अब इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं? इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है. अगर वो एग्जामिनेशन में हम पास हो गए तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो सकती हैं. अब वो एग्जामिनेशन के क्या क्वालिफाइंग, क्या क्वेश्चंस हैं, वो हम अगर एक एक क्वेश्चन अगर देख ले तो शायद हमें कुछ थोड़ा सहायता मिलेगी इसके तरफ ध्यान देने की. वो पहला तो उसको कहते हैं साधन चतुष्ट संपत्ति. चतुष्ट यानी 4, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी. मतलब आपको ये चारों प्रॉपर्टीज आपको अपने आप को सिखानी पड़ेगी, अपने आप को इसमें निपुण करना पड़ेगा. तो पहला ये है नित्य अनित्य विवेक. अब नित्य अनित्य विवेक का मतलब क्या है? व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज इम्परमानेंट. परमानेंट और इम्परमानेंट का जो भेद है वो अगर हम जान पाए तो हम इस संसार रूपी जो भव सागर है इसको पार करने में हमें थोड़ी बहुत आसानी जरूर होगी. अब व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज नॉट परमानेंट. नॉट परमानेंट इज व्हाट इज आउटसाइड ऑफ यू. व्हाट इज परमानेंट इज व्हाट इज इनसाइड यू. आपकी जो आत्मा आपके अंदर जो है वो परमानेंट नेचर की है, परमानेंट स्टेटस है उसका. और जो आपकी आत्मा से परे जो है वो इम्परमानेंट है. सो इसका भेद अगर हम जान पाए,
हाँ, नित्य अनित्य का विवेक जो है वो अगर कर पाए तो हमें इसमें फायदा होगा। दूसरा जो साधन चतुष्ट संपत्ति में दूसरा जो क्रम आता है वो है नॉन अटैचमेंट टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन। ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी बहुत अच्छे से इसे समझाया है कि नॉन अटैचमेंट ऑफ फ्रूट्स ऑफ एक्शन। आप एक्शन अपना करिए, पीरियड खत्म, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो ये एक हमको क्वालिटी हमको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ही डिटैचमेंट टू वर्ल्डली डिजायर्स। और वर्ल्डली डिजायर से हम सारा जकड़े हुए हैं। आज आते आते वो जोया का एग्जीबिशन देखा, मैं थोड़ा पहले आ गया था क्योंकि मेरा नेव्यू नहीं उसने अरेंज किया है, मेरा ग्रैंडसन, सॉरी बाल सफेद हो गया ना, तो ग्रैंडसन। तो उसने वो जोया का एग्जीबिशन किया। आते आते मैं गया देखने के लिए, मेरी वाइफ भी थी, दीपा भी साथ में थी। तो देखा और इतनी खूबसूरत डिजाइन के वहां डायमंड नेकलेसेस और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। तो ये सारी अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स जो है, अट्रैक्शन हमारे आजू बाजू हर तरफ है, इस हॉल के इमीडिएट बाहर है। तो आप सोचिए कि कितने नजदीक इस तरह से वर्ल्डली अटैचमेंट्स हैं। तो हमें इसके तरफ थोड़ा डिसर्नमेंट रहना चाहिए, करना चाहिए, अलग होना चाहिए। तीसरा आता है समदम उपरति और तितिक्षा, यानी कामनेस ऑफ माइंड। उसके बाद कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस, दम मतलब कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस। उपरति यानी विड्रॉवल फ्रॉम वर्ल्डली एंगेजमेंट्स। फॉरबियरेंस एंड पेशेंस, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमको पेशेंस, हर चीज में पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस का ही दूसरा नाम है सक्सेस। तो ये पेशेंस होना। और चौथा और आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब ये फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के हम आगे देखेंगे इसमें कैसे हम इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। मैं कुछ दिनों पहले मैंने एक स्वामी तेजोमयानंद जी, चिन्मय मिशन के जो हैं स्वामी तेजोमयानंद जी, उनका एक लेक्चर सुन रहा था मैं, और उस लेक्चर में उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहानी बताई। तो मैं एक वो कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी नहीं है, स्वामी तेजोमयानंद जी ने जो बताई वो मैंने सुनी और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं एक व्यक्ति था, उसके बॉडी में भयंकर पेन था। जहां भी वो हाथ लगाए, उंगली लगाए, वहां उसको पेन था। सर पे लगाए तो सर पे पेन हुआ, बदन पे लगाए तो यहाँ पेन हुआ, हाथ में लगाए, पैरों में लगाए, पेट पे लगाए, कहाँ जहां लगाए हाथ पेन हो रहा था। वो डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब से कहा कि भाई डॉक्टर साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ, जहां भी मैं हाथ लगाता हूँ दर्द होता है, और ऐसा दर्द होता है कि इसका कोई कोई सीमा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा आओ बैठो, मैं तुम्हें एग्जामिन करता हूँ। डॉक्टर साहब ने एग्जामिन किया और उससे कहा कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी उंगली फ्रैक्चर है, आपकी उंगली फ्रैक्चर है। आप उंगली जहां लगाओगे पेन तो होगा ही ना। तो वो इग्नोरेंस के बारे में बता रहे थे स्वामी तेजोमयानंद। वो कह रहे थे हमको, हमारा इग्नोरेंस है, हमें दर्द कहाँ है ये हमें पता नहीं था। हमारी उंगली फ्रैक्चर थी, हम उंगली यहाँ रखते थे तो पेन होता था, उंगली हटा देते थे तो पेन चले जाता था, हमें लगता था कि मेरी पूरी बॉडी में पेन है। तो ये एक इग्नोरेंस था। तो अगर हम हमारा इग्नोरेंस दूर करें, और वो इग्नोरेंस दूर करने से ही हम ये करने में हमको सहायता मिलेगी, जो कि साधन चतुष्ट संपत्ति, ये अगर हमने कर लिया तो इससे बड़ा कोई हमें ये नहीं हो सकता, हेल्प नहीं कर सकता, जिसके लिए हम आगे की हमारी यात्रा अच्छी तरह से पूरी करें। लेकिन एक इसमें बड़ा इम्पेडिमेंट आता है, एक बड़ी रुकावट जो आती है वो है कर्म की। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा अगर इस जीवन में हमें अपना गुजर बसर करना है, हमें ट्रांजैक्शन करना है, हमें लोगों से मिलना है, हमारे एक्टिविटीज करनी है, तो कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कर्म कैसा किया जाए? ऐसा किया जाए कि हम कर्म को रिड्यूस कर दें। कर्म को ड्रॉप करना मुश्किल है, जो सन्यासी हैं वही कर्म को ड्रॉप कर सकते हैं। हम और संसारी जो है, हम कर्म को ड्रॉप नहीं कर सकते। हम लेकिन कर्म की इंटेंसिटी या कर्म का जो दायरा है वो जरूर कम कर सकते हैं। यानी रिलेशनशिप को हमको
जितना हम कर, इतना हम ज्यादा से ज्यादा हम बाहरी दुनिया में इन्वॉल्व होते रहेंगे, ये भी करूं वो भी करूं, यहाँ भी जाऊं वहां भी जाऊं, जितना आप उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना आप संसार में इंटेंगल्ड होते जाएंगे। वो अगर हम कम करना सीख लें तो हमारा जीवन काफी हद तक के अच्छा हो जाएगा। अब ये अगर हम कर्म इस प्रकार से, रिलेशनशिप ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू एक्ट, ये एक बड़ा चक्कर जो है, साइकिल जो है, रिलेशनशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्सेज यू टू एक्ट, एक्ट मीन्स कर्मा। इफ दैट इज रिड्यूस्ड then your mind is available for what? For doing Atma Chintan. Because you have reduced your external activity, your mind is 100% times engaged in external world. If it is reduced, then you have time to look at yourself. Look at yourself स्वरूप। अब ये आत्मा स्वरूप कैसे देख सकते हैं हम? आत्मा स्वरूप देखने के लिए पहला तो करना होगा हमें शास्त्र विचार। मतलब हमारे जो शास्त्रों में जो हमें सिखाया गया है, रामायण है, गीता है, उपनिषद है, प्रकरण ग्रंथ हैं, ऐसे कई सारे जो है शास्त्र हैं, उनका हमको शास्त्र विचार करना चाहिए। और शास्त्र विचार करने के बाद ही हम आत्म विचार कर पाएंगे। और जो आत्म विचार करेंगे उससे हमें काफी, हम अपने आप को नजदीक से हम पहचान पाएंगे। अब हमेशा एक शब्द हम अभी शुरू से ही, जब से बात मैंने शुरू की तब से एक आत्मा आत्मा शब्द बहुत बार आया। तो ये आत्मा क्या है? और सभी कहते हैं आत्मा, उसके बाद एक शब्द आता है परमात्मा, उसके बाद आत्म विचार, ये भी एक शब्द आता है। तो ये बड़ा ही कहना चाहिए कि पेचीदा और बड़ा लगता तो डिफिकल्ट है, लेकिन बड़ा आसान है। अब हम ये डिफिकल्ट को आसान करने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा, देखिए, आत्मा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भागों में उसको समझने की कोशिश करेंगे। 5 टाइप्स। वैसे कैसे? आत्मा को हम क्या कहते हैं? संस्कृत वर्ड है शुद्ध चैतन्य। शुद्ध इज प्योर, चैतन्य इज कॉन्शियसनेस। अब हम शुद्ध चैतन्य की क्वालिटीज देखें। शुद्ध चैतन्य इज नॉट अ पार्ट, प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। पहला डेफिनेशन, शुद्ध चैतन्य जो हमारी आत्मा है, इट इज नॉट पार्ट, प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, इट इज सेपरेट फ्रॉम दिस। दूसरा, आत्मा की जो क्वालिटी है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। यानी आत्मा का काम क्या है? आत्मा एनलिवेंस दिस बॉडी, आत्मा प्रिवेट्स दिस बॉडी। इसीलिए अगर आप एक सुई लें और आपके शरीर के किसी भी भाग में सुई को चुभोएं, आपको दर्द होगा। इसका मतलब आत्मा इज प्रिवेडिंग योर एंटायर बॉडी। ऐसा कोई पार्ट नहीं है आपकी बॉडी में जहां आत्मा का प्रेजेंस नहीं है। तो ये हो गया आत्मा का दूसरा प्रॉपर्टी, मतलब दूसरी क्वालिटी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटी, इट इज एनलिविंग प्रिंसिपल एंड इट प्रिवेड्स योर एंटायर बॉडी। तीसरा, आत्मा का एक और प्रॉपर्टी हम देखें कि इट इज नॉट लिमिटेड बाय साइज। When I say it is not limited by size, it means that whether you are fat or thin, you are big or small, even the minutest of the micro living being or living thing, से लेकर के the biggest of the animals or whale, the same Atma prevails in each and every living being. The same Atma prevails in the non-living things also. हर चीज का, हर लिविंग थिंग का और हर नॉन लिविंग थिंग का अधिष्ठान केवल आत्मा ही है। तो ये इसका तीसरा क्वालिटी देख लिया कि इट इज नॉट लिमिटेड बाय साइज। कोई भी साइज हो, आत्मा वह है। चौथा, आत्मा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट एग्जिस्ट आफ्टर द बॉडी फॉल्स। आत्मा
कहीं नहीं जाता। हम कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम चलो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको हम एक्स नाम दे देते हैं। तो जो एक्स की मृत्यु हुई है, एक्स मतलब वो इलॉन मस्क वाला एक्स नहीं, आप वाई दे दीजिए नाम। वाई, अगर आप वाई की मृत्यु हुई है तो हम ये कहते हैं कि ये वाई की बॉडी है। तो वाई कहाँ है? ये वाई की बॉडी है, इसको अब हम क्रिमेशन के लिए ले जा रहे हैं। आपने जाने अनजाने में ये भेद कर दिया कि वाई की बॉडी मतलब वाई ये नहीं है, वाई कोई और ही है। अब वो और कौन है? वो है आत्मा, विच एग्जिस्ट आफ्टर द फॉल ऑफ द बॉडी। ये एक आत्मा की प्रॉपर्टी है। उसके बाद पांचवा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मा इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांजैक्शन। हम जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के लिए आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, या आत्मा के साथ आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम इस कमरे में बैठे हैं, लाइट लगी हुई है, मैंने अपना हाथ ऐसा रखा है, आप हाथ को देख सकते हैं। अब देख क्यों सकते हैं आप हाथ को? क्योंकि लाइट है, लाइट मेरे हाथ पे गिर रहा है, पड़ रहा है, इस वजह से लाइट मेरे हाथ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूं, इसलिए मुझे हाथ नजर आ रहा है। अगर मैंने मेरा हाथ इस टेबल के नीचे रख लिया तो क्या मेरा हाथ विजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग मीडियम इज नॉट अवेलेबल। लाइट इज देयर, लाइट कहीं नहीं गई। रिफ्लेक्टिंग मीडियम जो है, हमारी जो लाइट है, वो नहीं है। Therefore, we can apply this example to light is not a part, property or product of the body. बॉडी की प्रॉपर्टी ये नहीं है, लाइट नहीं है, देयरफॉर हम नहीं देख सकते। अब ये लाइट का ही एक दूसरा हम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आप इमेजिन करिए, आप एक कमरे में हैं जहां पे पूरा फुल डार्कनेस है, टीन की छत है, टीन की छत में एक छेद है, दिन के 12 बजे हैं और सूरज बाहर निकले हुए हैं, और उस छेद से एक लाइट अंदर आ रहा है और सीधा जमीन पे अब दिख रहा है, एक गोल राउंड स्पॉट दिख रहा है। लाइट वहां से एंटर हो रहा है ऊपर से और जमीन में गोल स्पॉट दिख रहा है। बीच में कुछ लाइट दिखता है आपको? बीच में लाइट नहीं दिखता। आपको ये दिखता है कोई अगर धूल उड़े तो आप धूल देख सकते हो, लेकिन लाइट एज सच इज इनविजिबल। रिफ्लेक्टिंग मीडियम, जमीन पे जब लाइट पड़ा तब रिफ्लेक्टिंग मीडियम होने की वजह से हमें वो जगह दिखी, या लाइट छत से बिकॉज ऑफ दैट होल वहां से जब एंटर हुआ कमरे के अंदर, वो छेद हमें दिखा जहां से लाइट निकली अंदर आई कमरे में। वाई? वो छेद वॉज अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम, बट लाइट इज ऑलवेज देयर, and that light is not part, property or product of that hole in the roof or on the floor. उसका भी प्रॉपर्टी नहीं है, लाइट एक अलग है। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है वो हमारे शरीर से अलग है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज 5 प्रॉपर्टीज हम आत्मा से ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। आत्मा, हमें इस प्रकार से आत्मा को पहचानना चाहिए कि भाई, तो इससे हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे, आई एम नॉट द बॉडी विथ आत्मा, आई एम नॉट द बॉडी विथ आत्मा, बट आई एम स्पिरिचुअल बीइंग विथ इंसिडेंटल बॉडी। ये 2 सेंटेंसेस है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई एम नॉट द बॉडी विथ आत्मा, मेरी बॉडी की प्रॉपर्टी आत्मा नहीं है। आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग,
आई एम ओरिजिनली आत्मा विथ एन इंसिडेंटल बॉडी। ये हमको, ये दोनों एग्जाम्पल, लाइट का एग्जाम्पल हमने लिया, हाथ का एग्जाम्पल लिया, उससे हमको ये जानने को मिला कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूं, लेकिन और बॉडी एक इंसिडेंटल है। बॉडी इज द रिफ्लेक्टिंग मीडियम और ट्रांजैक्शनल मीडियम फॉर आत्मा टू बी नोन। आज आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आप हैं, आप हैं, ये सेल्फ एविडेंट है। सेल्फ एविडेंट इसलिए है क्योंकि आप व्यवहार कर रहे हैं, आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो यू आर सेल्फ एविडेंट। दैट सेल्फ एविडेंट अवेयरनेस इज ब्रह्म चैतन्य, शुद्ध चैतन्य आत्मा। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, एक सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि थोड़ा हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। और वो एग्जाम्पल हम अब इस कमरे से शुरू करते हैं। ये इस कमरे में हम बैठे हैं और इस कमरे में बैठने से हम ये जानते हैं कि ये कमरे की लेंथ और ब्रेथ एक है, कोई होगी 20 फुट बाय 15 फुट या 20 वॉटेवर, 30 बाय 20 वॉटेवर कमरे की जो भी लेंथ और ब्रेथ होगी, और एक वॉल्यूम है इसका। तो ये कमरे के अंदर 20 बाय 30 और हाइट इसकी 20 फुट और ले लीजिए, उतनी एक वॉल्यूम की स्पेस है, कमरे के अंदर जगह है, स्पेस है। अब हम दूसरा प्रश्न अगर करें कि ये स्पेस कहाँ है, ये स्पेस चिटनवीस सेंटर में है। चिटनवीस सेंटर में और भी कमरे होंगे, हैं बिल्कुल, कई सारे कमरे हैं। उन कमरों में भी स्पेस है, अलग अलग छोटी बड़ी साइज के हॉल्स हैं, अलग अलग छोटे बड़े साइज की स्पेस है चिटनवीस सेंटर में। अब हम आगे बढ़ते हैं, चिटनवीस सेंटर कहाँ है? सिविल लाइंस में है। सिविल लाइंस कहाँ है? नागपुर में है। नागपुर कहाँ है? ऐसा करते करते भारत कहाँ है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? इस वर्ल्ड में है। वर्ल्ड कहाँ है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड कहाँ है? आत्मा में, ईश्वर में। सो हम ये जानते हैं कि स्पेस इज वन, बट the total space is one, but it is seemingly divided into different parts. उसी प्रकार आत्मा एक है, और उसको जो हम इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ कमरे में बैठे हुए, उस परमात्मा के अंश है थोड़े थोड़े इसमें। जैसा कि हमारे यहाँ जैसे पानी की बोतल है, ऐसी समझिए सबके सामने एक एक बोतल रखी है। सो द कंटेनर्स आर मेनी, but the content that is water is one, and that water as a content is the same, but there can be many containers. So therefore हम ये समझे, हम इससे क्या सबक लेते हैं? I am the आत्मा behind this physical body. ये तो क्लियर हो गया, ये स्पेस और लाइट के एग्जाम्पल से। I am the आत्मा behind this physical body which is enliving, आत्मा is enliving my physical body। उसको हम कहेंगे, आप सब जानते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी परमात्मा, मतलब आई एम द आत्मा बिहाइंड दिस फिजिकल बॉडी इज कॉल्ड अंतर्यामी। उसी प्रकार से आई एम द कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल द फिजिकल बॉडीज, इसको हम कहेंगे आधार स्तंभ। और सर्व अधिष्ठानम, सर्व अधिष्ठानम मीन्स सब प्राणियों के, सब चल अचल जो हैं हमारे सामने, जो दृष्टि है, जो नहीं दिखता दिखता है, वो सारे के अधिष्ठान जो हैं वो आत्मा है, वो कॉन्शियसनेस है विच इज कॉमन इन ऑल। सो हम अंतर्यामी और आधारत्वम, इन दोनों को हम जान गए। हमारे अंदर जो आत्मा है वो हम उसको अंतर्यामी कहेंगे, और जो बाहर जो सारे संसार को एनलिवन करता है वो कॉन्शियसनेस को हम आधारत्वम या सर्व अधिष्ठान करेंगे। इसी का मतलब संस्कृत में
एक तीन लाइनें हैं, तीन शब्द हैं, वो क्या कहते हैं? एक आत्मा सर्वभूतेषु, एक ही आत्मा सारे भूतों में, मतलब थिंग्स बीइंग्स में एक ही आत्मा है। इस प्रकार हम ये देखें, राम ने कहा देख ब्रह्म समान सब माही। ये राम ने हमें दोहा नंबर 14/3 इसमें उन्होंने कहा, ज्ञान मान जह एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कही ही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तनि गुण त्यागी। तो एक ब्रह्म सब में समान हम जब देखेंगे, तब हमारी दृष्टि, हमारी जो धारणा है, वो तीनों गुणों के परे हो जाएगी। हमारे तीन गुण मतलब रजस, तमस और सत्व। तो ये तीनों गुणों के हम परे हो जाएंगे। वी विल गो बियॉन्ड दीज थ्री गुण। आप कहेंगे सत्व से कैसा परे हो जाए? जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो सत्व, रजस, तमस हमें किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं करता। अगर हम सात्विक काम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, अगर बुरा काम करेंगे हमें पाप मिलेगा। और पुण्य मिले चाहे पाप मिले, विल मेक अस डू कर्मा। पुण्य का रिजल्ट अच्छा होगा तो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित होगा। जब वो पुण्य हमारा खत्म हो जाएगा तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से पाप का जब हम भोग करेंगे, भोग खत्म होने के बाद हमें फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर हम ये तीनों गुणों के परे हो जाएंगे जब हम एक तत्व, एक आत्मा सर्वभूतेषु की दृष्टि रखेंगे, जो भगवान राम ने देख ब्रह्म समान सब माही इसमें उन्होंने कहा। दोहा नंबर 15 में भगवान राम कहते हैं, माया ईस न आप कहु जान, कहि सो जीव, बंद मोच प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। वो जीव की डिस्क्रिप्शन करते हैं। वो कहते हैं कि जीव इज वन हु डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन माया, ईश्वर एंड आत्मा। माया इज द क्रिएटिव पावर ऑफ ईश्वरा, एंड this creative power of Ishvara, if it is recognized and understood in the correct manner, this Maya can become your friend. Today, अभी तक के जो हमने देखा, हमें ऐसा लग रहा है कि माया हमारी दुश्मन है, हमें भटकाती है। लेकिन माया को अगर हमको दोस्त बनाना है तो हमको ईश्वर की क्रिएटिव पावर को अप्रिशिएट करना है। ईश्वर की क्रिएटिव पावर को इस प्रकार से अप्रिशिएट करना है कि वो हमारी साधना में सहायता करे। ये दृष्टिकोण हमारा धीरे धीरे बदल जाएगा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को इस प्रकार से ये उपदेश दिया। अब तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने पूरे रामचरितमानस में भक्ति को ज्यादा प्राधान्यता दी है। लक्ष्मण और राम का संवाद आरण्य कांड में हुआ इस बार। इसके बाद युद्ध कांड में भी भगवान राम और लक्ष्मण का संवाद हुआ। क्वेश्चन वो कब हुआ? जब लक्ष्मण को इंद्रजीत ने शक्ति से घायल कर दिया। संजीवनी बूटी मिलने के बाद लक्ष्मण जी को होश आया। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप समझिए, लक्ष्मण से कहा कि देखो कि ये जीवन और मृत्यु ये आनी और जानी है। जो प्राणी जन्म लेगा उसका अंत होना है, ये तय है। आज होगा या कल होगा ये मुझे पता है, तुम्हें नहीं। और दूसरा, किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुम्हें अगर तुम हो, जैसे आज तुम्हारी परिस्थिति विपरीत है, तुम्हें बाण लगा है, फिर भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य मत खो और अपना जो कर्तव्य है उसको निभाने में बिल्कुल आगे पीछे ना देखो। ये आप अगर करेंगे तो आपका जीवन जो है वो सफल होगा। भले ही आपको यश मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है यश मिलने की। इनफैक्ट इस जगत में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन अगर आप अपना कर्तव्य सही ढंग से करते रहें तो भगवान राम कहते हैं कि आपका जीवन सफल होगा। यश अपयश बात की बात है। तुलसीदास जी ने इसके बाद के जो दोहा है उसमें भक्ति के ऊपर तुलसीदास जी ने कुछ दोहे कहे हैं। अब हम उस भक्ति की ओर आते हैं जो कि तुलसीदास जी जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में उन पैदा हुए तभी राम राम जप करते हुए पैदा हुए, इसलिए नाम पड़ा राम बोला, और राम बोला से तुलसीदास हो गए। तो भगवान राम कहते हैं कि आई रिसाइड इन द हार्ट्स ऑफ पीपल हु सरेंडर टू मी। शरणागति भाव से तथा निष्काम भाव से जो मेरा भजन करता है मैं उसके हृदय में वास करता हूं। अब हृदय में वास करना यानी आत्मस्वरूप को पहचानना। जब भी कोई कहते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में कई बार आता है कि भगवान आपके हृदय में है, इसका मतलब क्या? भगवान फिजिकली तो है नहीं। सिर्फ एक एग्जाम्पल हमारे सामने, हनुमान जी को जब पूछा गया आप भगवान राम से कितनी भक्ति करते हैं, टेस्ट करना चाहा, तो उन्होंने अपनी छाती चीर करके अंदर दिखा दिया कि भगवान राम की मूर्ति, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तीनों मौजूद हैं। ये हनुमान जी का कहानी है, एग्जाम्पल दिया गया है। तो क्या हम ये समझे कि भगवान राम उसी रूप में, जिस रूप में हनुमान में उपस्थित थे, जो उन्होंने दिखाया, उसी रूप में हमारे हृदय में है? नहीं। भगवान, जब हम कहते हैं कि भगवान आपके हृदय में वास करेंगे, इसका मतलब है हमने हमारा वास्तविक रूप पहचान लिया और हमने नित्य अनित्य विवेक को हमने सही तरीके जाना। व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज इम्परमानेंट, इसका भेद हमने जान लिया। इसलिए तुलसीदास जी, इसके बाद का जो प्रसंग है वो जो पंचवटी में जो आता है, इसके बाद तुरंत ये भक्ति के दो ही दोहे हैं, इसके बाद सीधा शूर्पणखा प्रसंग आ जाता है। तो यहाँ पे शूर्पणखा प्रसंग हमारा विषय नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे आज भगवान राम और लक्ष्मण का जो उपदेश था, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को जो उपदेश दिया वो इस प्रकार से उपदेश दिया। इसमें मेन पॉइंट हमें देखने लायक ये है कि देख ब्रह्म समान सब माही। इसके ऊपर पूरा ये भगवान राम ने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, जो मुझे बड़ा आनंद आया। आप लोगों से मैंने शेयर किया, और कोई गलती होगी तो मेरी है, और आप कुछ सुधारना चाहें मुझे तो जरूर सुधारिए। आई वुड लाइक टू लर्न। थैंक यू। वेरी नाइस सर। एक्चुअल में वैसे तुलसी रामायण में 1000+ चौपाई है, 1000+ दोहे हैं। कुछ चौपाई और दोहे सर ने हमें एक्सप्लेन किए, उसके अंदर ही इतना ज्ञान छुपा हुआ है। अगर पूरी तुलसी रामायण हम अगर मन से पढ़े तो कुछ बात ही अलग है। सर ने जो एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया बताता हूँ, और उसके बाद में एक दो प्रश्न करके मैं आपकी तरफ मुड़ता हूँ। भगवान राम जो है, उन्हें हम सगुण साकार रूप में भी देख सकते हैं कि वो तो आज अवेलेबल नहीं है जीवात्मा के रूप में, लेकिन सगुण साकार में अयोध्या मंदिर है या राम मंदिर है या हमारे घर में राम की मूर्ति हो सकती है, उसमें देख सकते हैं। लेकिन जो निर्गुण निराकार रूप है, जो ब्रह्म रूप है, जो कि हर व्यक्ति के अंदर अ, है, आत्मा ही राम है, इसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है। सर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि साधन चतुष्टय होने से ही हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें विवेक मतलब नित्य अनित्य का ज्ञान होना, वैराग्य मीन्स कर्म फल के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होना, षट संपत्ति सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति होना, और मोक्षत्व होना मीन्स मोक्ष जाने की इच्छा होना, तभी हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। आपने कर्म के बारे में भी बताया और बाकी सब चीज भी बताई, तो बहुत अच्छा लगा सर। मेरा एक दो प्रश्न है, फिर मैं आगे करता हूँ।
तुलसी रामायण के जब मैंने कुछ पेजेस पढ़े तो उसमें एक जगह ये था सर कि जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में ध्यान से हम ब्रह्म को पा सकते थे। त्रेता युग के अंदर यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन से, और कलयुग के अंदर सिर्फ राम का नाम जपने से ही हम ब्रह्म को पा सकते हैं। और इसलिए राम नाम जपने को तुलसी रामायण में काफी महत्व दिया है। उसी को ही भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। तो उसमें आप थोड़ा कुछ ऐड करना चाहते एक भक्त का क्या साइन है कि ये भक्त है? जैसे हेमंत जी ने कहा कि राम नाम जपने से इस कलयुग में हम इस संसार पार कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखें कि भक्त भक्त को कैसे पहचानें। तो भक्त को पहचानने का एक बहुत सरल तरीका है। जब भी किसी कोई भजन गाता है या भगवान की स्तुति करता है तो आपके आंखों से प्रेम आश्रु अगर निकले, आप भक्त हैं। मतलब भगवान का नाम ही इतना प्रचंड महान है कि वो नाम सुनते साथ ही आपका हृदय पिघल जाता है। इस प्रकार से पिघल जाता है कि आंखों से आंसू निकल आते, तब आप भक्त हैं। और ऐसा इस कलयुग में अगर हम करें, भगवान का नाम लेते रहें, तो इसके जैसा पुण्य कहीं नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं। तो आप सभी लोग अगर ये प्रयत्न करें जाप करने का, तो जरूर मैं समझता हूँ सबको उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि जैसे कि कहा गया है कि एक राम का एक नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर है, उतना पुण्य मिलेगा। थैंक यू सर। मेरा दूसरा प्रश्न है जो रियल में मतलब मैं आज भी कंफ्यूज रहता हूँ उसके बारे में, भ्रम है। आत्मा का आपने एक स्वरूप बताया, सच्चिदानंद, और से शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, चेतन है, और आनंदमयी है। और दूसरा आपने ये भी बताया कि जो हमारा जो शरीर है, या जो जो कुछ भी हम इंद्रियों से देखते हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग, उससे हम ब्रह्म को नहीं देख सकते हैं। तो मेरा प्रश्न हमेशा ये रहता है कि मुझे तो दो चीज अलग अलग दिख रही है, ये जड़ है और जो आत्मा है वो चेतन है। लेकिन जब अद्वैत की तरफ बढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि ये भी सब माया है, और ये भी एक आत्मा का ही स्वरूप है। लेकिन आत्मा के गुण जो है, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, चेतन वगैरह, और जो जड़ के गुण हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। तो मैं एक देख नहीं पाता हूँ। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा। इसके बारे में मैं एक दो एग्जाम्पल दे करके आपका समाधान करना चाहूंगा। वो ऐसा है कि आप जब भी आप कोई ऑर्नामेंट खरीदते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड चेन आप खरीदने जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं उसमें? आप कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड द डिजाइन दोनों देख करके आप लेते हैं। आपने वहां द्वैत भाव खत्म कर दिया है। अगर आप केवल सोने का सिक्का लेने जाते हैं तो आपने क्या किया? आपने डिजाइन को बाजू कर दिया, केवल गोल्ड लिया, सोने का सिक्का। अब उसी प्रकार से जैसे आपने सोने की चेन खरीदी, वो डिजाइन और गोल्ड देख करके आपने उसका वजन करके आपने चेन खरीदी। आप अगर कुछ वर्षों के बाद उस आपको इच्छा हुई कि वो चेन को हम वापस कर देते हैं, उसके जगह अंगूठी ले लेते हैं, तो आप जब सोनार के पास जाते हैं तो सोनार कहता है कि मैं इसका वजन करता हूं, इसका इतने इतने ग्राम का ये गोल्ड है। वो आपको उसका जो डिजाइन है या जो शेप है उसके बारे में वो कोई बात ही नहीं करता, केवल गोल्ड की बात करता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो संसार है, इसमें अधिष्ठान रूपी क्या है, गोल्ड क्या है और चेन क्या है। गोल्ड और चेन का जो डिफरेंस है वही है संसार में द्वैत और अद्वैत पैदा करता है।
आज ये टेबल है, ये लकड़ी का टेबल है, टेबल यूटिलिटी है, मेरा चश्मा रखा है, कागज रखे हैं, बोतल रखी है, मोबाइल फोन रखा हुआ है, सारी चीज रखी हुई है। लेकिन इस टेबल का अधिष्ठान क्या है? इस टेबल का अधिष्ठान लकड़ी है, वुड है। तो जो ट्रुथ बिहाइंड एवरीथिंग, वेदर जड़ और चेतन, उसको हम अगर बाइसेक्ट या डाइसेक्ट करना चाहें तो हमें अधिष्ठान पता लगेगा, और हम अधिष्ठान से द्वैत और अद्वैत की पहचान कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? नो क्वेश्चन। So thank you very much for an excellent interpretation and excellent explanation. And I get this opportunity quite a bit, but of discussing with Mr. Kale. But it's really very nice in a formal surrounding to hear what you had to say. And it's been a great education, even for a very short while, to know what is the difference between Jad and Chetan. आणि तुम्ही जे शेवटी म्हणालात तो शेवटचा तो आहे की ब्रह्मांड मैं हूं, तर मला असं वाटतं की याच्यामध्ये 3 प्रसंग जे आहेत रामचरित मानसमध्ये, त्याचं काही कनेक्शन आहे का हे मी विचारू इच्छितो. पहिला प्रसंग म्हणजे श्रीरामजी जेव्हा छोटे होते तेव्हा कौसल्या माता त्यांना तयार करत होती आणि आपला प्रसाद करत होती पूजेकरता. तर त्यांना असं दिसलं की श्रीराम प्रसाद खात आहेत, म्हणून जेव्हा परत गेली तर मग पाहिलं की पाळण्यात झोपले आहेत म्हणून. तर ह्या कन्फ्युजन मध्ये मग ती जेव्हा त्यांच्याकडे गेली जिकडे ते प्रसाद खात होते, तर त्यांनी हसून आपलं तोंड उघडलं आणि त्याच्यामध्ये कौसल्या माताने काय पाहिलं की खूप ब्रह्मा विष्णू महेश असे खूप आहेत, नाना प्रकारचे ब्रह्मा विष्णू महेश असं पूर्ण ब्रह्मांड आहे, आणि असे खूप ब्रह्मांड आहेत आतमध्ये. हेच काकभूषणी पण पाहिलं. आणि हेच असं म्हणतात की सती माताने मी पण पाहिलं, कारण जेव्हा सती माता शंकरजींना विचारते की हे कोण, हे राजकुमार काही म्हणजे इतक्या यांच्याबद्दल इतका आदर का, तर ती त्यांची जी परीक्षा घेते, सीतेचा रूप घेऊन त्यांच्याकडे जाते आणि तेव्हा अगेन तिला हे दृश्य दिसतं. तर डज दिट इंडिकेट व्हॉट यू आर सेइंग दैट यू नो जो आत्मा जो है इट इज वन एंड इट encompasses, it covers everything that is there, what we know and what we don't know. तुलसी रामायण में ही जैसा कि हमने देखा कि अंतर्यामी और अधिष्ठानत्वम, ये जो दो शब्द जो हमने देखे, अंतर्यामी इज इनड्वेलर, अधिष्ठानम इज द बेसिक बेसिस ऑफ दैट होल जगत प्रपंच एंड एवरीथिंग. अब जो ये प्रसंग है जो भगवान ने मुंह खोला और उसमें मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड नजर आया, या एक नहीं कई ब्रह्मांड नजर आए, उसी प्रकार से भगवत गीता में 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन को भी अपना सही रूप दिखाया. और सही रूप दिखाने का मतलब यह है कि सारे ब्रह्मांड उनके मुख में दिख रहे थे, और एक साइकिल दिख रहा था कि सारे प्लैनेट्स अपना अपना जो डिफाइंड उनका जो ट्रैवल का जो पाथ है, वो डिफाइंड ट्रैवल के पाथ से सारे प्लैनेट्स घूम रहे थे. लोग पैदा हो रहे थे, युवा हो रहे थे, वृद्धावस्था में पहुंच रहे थे और ये जगत छोड़ रहे थे. ऐसा पूरा दृश्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया. सिमिलरली जो भगवान राम ने कौशल्या माता को दिखाया. तो इससे हम ये दिखाता है कि ये सारा कुछ जो भी प्रपंच है, चेतन या जड़, ये सारा प्रपंच के पीछे केवल एक ही प्रिंसिपल है, एंड दैट प्रिंसिपल इज दैट परमात्मा. परम मीन्स सुपीरियर,
It doesn't mean your Atma is inferior. It is equally superior. It is only Antaryami and Bahiryami. So indweller and outdweller. So outdweller and indweller is the same. And therefore the basis or the support of the entire universe, Brahmanda, is only one Atma. That is what is depicted. I have a couple of questions. First one is distinction between कर्म, अकर्म, विकर्म, ये तीनों शब्दों में क्या फर्क होता है? सेकंड इज जैसा आपने कहा कि राम जी ने कहा था लक्ष्मण से जब वो उठे, मतलब जो घायल हो गए थे और निद्रा में थे और फिर उठे, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कब अंत होना है या किस तरह से, अगर जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इफ एनीवन नोज कि आगे जाके क्या 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 होना है, तो फिर वो कर्म क्यों करेगा? मतलब इट इज वेरी, मतलब बहुत अजीब बात है कि अगर मुझे पता है कि सीक्वेंस ऑफ ये इवेंट यही होना है, तो फिर मैं उसको चेंज करने की भी कोशिश ना करूं या कहीं से भी डाइवर्ट करूं, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स है तो उसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये कंसेप्ट लॉजिकल माइंड में बैठ नहीं पाता है। इफ यू कैन इलेबोरेट कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मुझे पता है और फिर भी मुझे दुख हो रहा है, जब मुझे पता है कि लक्ष्मण अभी नहीं मरेंगे, हनुमान ले आएंगे बूटी, वो बच ही जाएंगे, उनकी डेथ बाद में होनी है, मैं खुद उनको वो दूंगा, और मतलब मृत्युदंड उन्होंने खुद ही दिया था। तो ये जानते हुए भी उस समय दुख होना, क्योंकि ये मेरा भाई है इस जन्म में और ये इस अवस्था में है, ये भगवान के लिए भी सही था या नहीं था? भगवान राम मानव अवतार में थे उस वक्त जब भगवान राम का जन्म हुआ। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ, वो मानव अवतार में थे। मानव अवतार में मनुष्य के सामने जो जो चैलेंजेस आते हैं या आ सकते हैं, उन सारे चैलेंजेस को भगवान ने फेस किया। और उन्होंने किस प्रकार से फेस किया, उसका अगर हम आचरण कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। अब क्योंकि भगवान ने मानव रूप का धारण किया था, इसलिए मानव के स्ट्राइव, स्ट्रगल, पेन, हैप्पीनेस, ये सारा एक्सपीरियंस किया और कैसे करना चाहिए ये लोगों को बताया। अब भगवान राम के जीवन से हमें यही सीखना है कि भाई डिफिकल्टीज तो आएंगी और रोज आएंगी और हमें रोज उसको फेस करना है। कैसे फेस करना है वो भगवान राम ने दिखाया। हालांकि वो भगवान थे, उन्हें पता था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है अर्जुन से कि मुझे पता है तुम्हारे और कितने जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे पुराने पिछले जन्मों में तुमने क्या क्या किया, कैसा तुम्हारा जीवन व्यतीत हुआ, कैसा तुम्हारा अंत हुआ, आगे तुम्हारे कितने जीवन, कितने जन्म होने वाले हैं, ये भी मुझे पता है। तो ये भगवान कृष्ण ने उस वक्त भगवान के रूप में अर्जुन को बताया, मानव रूप में उन्होंने नहीं बताया। मानव रूप में उन्होंने जो बताया वो भगवत गीता का उपदेश है। सिर्फ 11वें अध्याय में उन्होंने जो कहा, विश्व रूप दर्शन करवाया, तो वहां पे उनका रोल मानव रूप से चेंज होकर के भगवान स्वरूप हो गया था। इसलिए अर्जुन को बाद में जो उन्होंने देखा वो याद नहीं था। अर्जुन उसके बाद भी अपने क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई उसे। भगवान ने इतना पूरा भगवत गीता का उपदेश दिया, उसके बावजूद अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। उसको ज्ञान बाद में हुआ, जब पांचों भाई स्वर्गवास को जाने को हुए, तब जाकर के अर्जुन को असली में ज्ञान हुआ। सो देयरफॉर यहाँ पे राम का जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, राम मानव रूप में थे, इसलिए मानव को जो भी डिफिकल्टीज, कठिनाई फेस करनी पड़ेगी वो करनी ही पड़ेगी। हमें सिर्फ एग्जाम्पल उनके लाइफ से लेना है कि हम, जैसे मैंने कहा ना, गुण 16 गुण थे, उसमें से आप टिक मार्क करिए, आप कहाँ कहाँ तक कितने गुणों को टिक मार्क कर सकते हैं। और जितने करेंगे उतने आप नजदीक हैं भगवान के। तो ये एक हमें सीख के लिए उन्होंने किया।
आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कर्म अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है। एक्चुअल में गीता के अध्याय 4 श्लोक 18 के अंदर भगवान कृष्ण ने इसके बारे में बात किया था। तो कर्म है बेसिकली जो धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, लाइक यज्ञ है, तप है, ध्यान है, दान है, लेकिन जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मीन्स पुण्य कर्म है वो। ओके। विकर्म है जो कि धर्म के विरुद्ध कर्म है, जो कि पाप कर्म की प्राप्ति होगी या नर्क मिलेगा, वॉट एवर इट इज। अकर्म है जिसको कई जने कहते हैं निष्क्रिय रहना, कर्म नहीं करना, लेकिन उसका अर्थ ये भी है कि एक ज्ञानी होता है वो कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं करता है, मीन्स वो निष्काम कर्म करता है। तो इस तरह से कुछ फर्क है। अगर और कोई लाइट डालना चाहे, निरंजन जी को काफी इसके बारे में नॉलेज है। कर्म के बारे में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शास्त्र में बोला गया है कि ये जो हम कर्म करते हैं, तो हम कर्म का दो चीज होता है, एक तो हम एक्शन और इसका रिजल्ट। तो हमारे शास्त्र में बोला जाएगा कि हमारा कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मगर माँ फलेषु कदाचन, यानी जो फल है उसमें कोई अधिकार नहीं है। ये है कर्म का बेसिक प्रिंसिपल। मगर हम इसमें और एक चीज बताया गया है कि रिजल्ट के प्रति हमारा एक्सपेक्टेशन जरूर रहेगा, मगर आसक्ति नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा। मगर अकर्म जो बोलते हैं, अकर्म बोलने का ये है कि हम जो काम करते हैं वो काम में हमारे कर्तृत्व भाव, मतलब हम काम कर रहे हैं, ये एक रहता है कि मैं कर रहा हूं, माई ईगो। बिकॉज हमारे बॉडी में, माइंड में जो 4 पार्ट है, अहंकार जिसको बोला जाता है, आईनेस, वो आईनेस से हमको रिफ्लेक्ट होता है कि ये मैं काम कर रहा हूं। जब तक वो फीलिंग रहेगा हमारे पास कि हम ये काम कर रहे हैं, तब तक हमारा कर्मफल बनता ही रहेगा और जिंदगी मेरा अभी कभी खत्म नहीं होगा। हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। तो ये इसलिए आता है, ये कर्तृत्व भाव से आता है, बिकॉज हम कर रहे हैं। और दूसरा क्या भाव होता है, रिजल्ट भोक्तृत्व भाव, यानी हम उसका एंजॉय कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं। तो काम का ये 2 एंगल होता है, एक कर्तृत्व भाव, एक भोक्तृत्व भाव। तो अगर आप ज्ञानी हैं, आप अगर स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्टेड हैं, then your goal or your state of mind is where you don't have this I-ness of doing things of any action, and also similarly you don't have that attachment of any bhoktritva bhav, यानी enjoying the result or suffering from the result। इसीलिए आप हम देखेंगे कोई भी हमारे ज्ञानी जैसे श्री राम कृष्ण, उनका गले में कैंसर हुआ था, मगर वो फीलिंग्स नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? वो कि माइंड को रोक करके ऐसा करते थे, नहीं था, उनका था ही नहीं, इसलिए कि उनका भोक्तृत्व भाव खत्म हो चुका था ज्ञान से। जैसे रमाना महर्षि, उनका सर्जरी हुआ था, कोई एनेस्थीसिया नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? उसके मन में था ही नहीं, वो उस लेवल में थे। हम लोग सोच भी नहीं सकते वो क्या है, मगर हम थियोरेटिकली समझ सकते हैं। तो ये है, हेमंत जी ने बोला कर्म अकर्म विकर्म, वो उन्होंने बताया। अकर्म का माने ये। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? निरंजन दा ने जो बोला उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं, कि इंग्लिश में अनएक्शन और इनएक्शन, ये 2 वर्ड्स हैं। इनएक्शन मतलब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हो रहे हैं, और अनएक्शन मतलब हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा जो कर्तृत्व भाव नहीं है, दैट इज अनएक्शन। ये बिना अहंकार से मैं कर रहा हूं। तो अनएक्शन और इनएक्शन में ये फर्क मुझे अभी तक जो समझ में आया है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मैं एक पूछना चाहता हूँ, आपने लक्ष्मण ने जो श्री राम को पूछे थे कि ये माया क्या है, तो राम का क्या जवाब था? एक्चुअली माया के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ा है, मगर श्री राम का उत्तर क्या? माया, भगवान राम कहते हैं कि माया ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है। अगर इस जगत में हमें व्यवहार करना है, और करना ही पड़ता है,
तो इसके लिए माया ये अत्यंत आवश्यक है। बगैर माया के आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। आपको जो भी फंक्शन करना है सुबह से लेकर शाम तक के, उस माया को आधार बनाकर ही आपको एक्शन करना है। लेकिन जब तक के, भगवान राम कहते हैं कि जब तक के आपकी एक्शन धर्म के अनुसार है, तब तक के माया आपकी सहायता करेगी। और जब आपकी एक्शन धर्म के विरुद्ध होगी, वही माया आपको और तकलीफ में और गड्ढे में ले जाएगी। तो भगवान राम का ये कहना है कि माया का इस्तेमाल आप अपने मन पे मत छोड़िए, माया का इस्तेमाल आप अपनी बुद्धि पे छोड़िए। पिछले सत्संग में मैंने हेमंत जी के यहाँ सत्संग हुआ था, तब मैंने एक बात कही थी, वो शायद मेरे लिए तो बहुत काम की है। मैं हमेशा उसका इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरा मन गलत कामों की तरफ या गलत विचारों की तरफ ना जाए। उसके लिए एक उपाय है, आप ट्राई कीजिए, आपके साथ भी ये सक्सेस हो सकता है। वो ये है कि जब भी मन में बुरे विचार आए, आप अपनी माता का चेहरा सामने ले आइए। योर मदर इज द फर्स्ट टीचर। आपकी माँ आपके विरुद्ध कुछ नहीं करेगी, आपको अच्छा उपदेश ही करेगी, गलत रास्ते पे जाने से रोकेगी। जब भी मन में बुरे विचार आए, अपनी माता का चेहरा आपके सामने ले आइए। आप इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करने लग जाएंगे, ना कि अपने मन का। मन हमें भटका देगा, इंटेलेक्ट हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। और वो करने में आपकी माता आपकी सहायता करेगी, चाहे वो हैं या नहीं है, फिर भी आपकी सहायता करेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से। Thank you. I think there is no other question. I express my thanks to Kumar sir. So wonderful and enlightening session you have given to us. हम हर महीने ये प्रोग्राम करते हैं। आपका नंबर और नाम नोट किया है। अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तो विल ऐड यू इन ए कम्युनिटी कॉल्ड शास्त्रार्थ, so that you can get the notification. एंड अगर आप आएंगे हर प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा लगेगा। और इफ एनीबडी ऑफ यू वांट्स टू बी ए स्पीकर ऑन एनी सब्जेक्ट, दे कैन सेंड मी द इंफॉर्मेशन, एंड जिस तरह से भी होगा हम वो सेशन रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स।